left-handed Parveen Gill, and we watch, I think Akhtar Sheikh open the bowling attack from Rehan Sanjari pavilion end. Akhtar Sheikh, one of the successful bowler in opening match, claimed the 3 wickets and including the wicket of Ankur Singh. And there we watch Akhtar Sheikh in first mandatory power play, mid-off, extra cover, backward point, deepish gully, short thurman, pack offside field, onside, short wideish fine leg, deep mid wicket and a long on. First ball this time put away, high and some. This is the huge hit from Gale in style of Chris Gale for 6. What a start. Sujit Shan joining me in commentary. This is the terrific stroke from Mr. Parveen Gill. Parveen Gill off the mark with sixer and his score is 6 for no wicket. Akhtar Sheikh up to the wicket now. Goes to Gill who goes his back foot and cuts das ball. Control shot between two fielder racing all the way to the point boundary for 4. This is the great start from Bilariaganj Super King. In 2 balls, Akhtar is very expensive so far. 10 runs considered. 10 for no wicket. Bhavi sir, this is a very crucial match for both teams. Both are wins 1-1 matches. They are playing to each This other. time, put away on the onside. Picks on full. Find the fielder at long on. 1 more to total. 11 without loss. Now, Hassan on his strike. Facing Akhtar Sheikh. You are watching Azamgarh Premier League, the match between Gopalpur Tigers and Bilariaganj Super King. Akhtar Sheikh turn from far end up to the wicket now. Ball this time goes his back foot and hooks das ball in vacant area. A calculated six through the square leg. And Shan, I think, very expensive bowling so far from Akhtar Sheikh, considering a lot of runs in first mandatory power play. Yeah, first time Akhtar Sheikh is going to track to in the second over. And first ball is a half tracker and use it for Hassan. Hassan is a very good player. This time, great shot. This is a firm looking square drive. Downs to the cover point boundary for 4. Seated batted stroke. Great stroke indeed. And Akhtar Sheikh in trouble now because runs coming very rapidly and his score bouncing to 21 without loss. 21 without loss. Akhtar Sheikh. Ball this time a beautiful stroke, misfield, and ball is racing all the way to the boundary for 4. What a great stroke played by Hassan. Picks on the off volley and firmly driven all on the ground. In covers sloppy work and ball is racing all the way to the cover boundary for 4. That marks an expensive over turn from Akhtar Sheikh. Consider silver jubilee run. एक ओवर की समाप्ति 25 रन बिना किसी विकेट के। 7-7 ओवर का ये मुकाबला है। इसके बाद एक आखिरी मुकाबला भी आप देखेंगे। आकिब पटेल जो निज़ामपुरा भिवंडी को बिलोंग करते हैं, वो ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं। उन्होंने एपीएल की बहुत सराहना की है। यासिर और उनके सभी साथियों को, शाहनवाज, पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मुबारकबाद दी है। और स्पेशली क्योंकि अख्तर शेख बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलें, उनकी टीम को भी और अपोजिशन को भी मुबारक कहा है। लेकिन मसला ये है कि अख्तर शेख बहुत ही एक्सपेंसिव साबित हुए। एक ओवर की समाप्ति, रन बने 25। दूसरे ओवर में वीआईपी एंड से गेंदबाजी के लिए जैद खान, ऑल इंडिया आइकॉन। बल्लेबाजी पिछले मैच में 5 सिक्सर जड़े थे जैद खान, लेफ्ट आर्म
over the stump. Right arm round the stump, lovely ball. क्या गेंद थी, इन कटर किया था, टिप्पा खाने के बाद बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए स्विंग होकर बाहर गई. Zaid Khan, right arm round the stumps. इस मर्तबा कट करने की कोशिश, अतिरिक्त उछाल, वाइड. तीसरे अंपायर को पूछा है. इट्स ओवर टू यू हरीश. आइए एक हौसला अफजाई प्रोग्राम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे. आज हमारे साथ जनाब चंद्रकेश यादव बट्टा से खास उपस्थित है. उनका एक भव्य सत्कार मैं गुजारिश करूंगा तारिक खान भाई से कि उनका एक सत्कार किया जाए. चंद्रकेश यादव जी. चंद्रकेश यादव जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं. आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप आगे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें. एक खूबसूरत शॉल, गुलदस्ता और सम्मान चिन्ह देकर आपका एक भव्य सत्कार हम कर रहे हैं. चंद्रकेश यादव जी, चंद्र की शीतलता आपके अंदर हमेशा बनी रहे, ये हम शुभकामनाएं दे रहे हैं और अच्छा काम करते रहें. अब हमारे भाई पूर्व विधायक सम्माननीय अरुण कांत यादव जी, इनका एक भव्य सत्कार जनाब रेहान संजरी साहब के हाथों हम करेंगे. अरुण कांत जी एक युवा नेता के रूप में, पूर्व विधायक के रूप में आज हमारे साथ उपस्थित हैं. उनकी फिटनेस को देखकर वाकई में ऐसा लग रहा है हेल्थ इज वेल्थ. जान है तो जहान है. अच्छी सेहत होना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर आप अपने लोगों का काम कर पाएंगे. अरुण जी लोगों को मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनको सुलझाते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं. ऐसे सूरज की जो तपिश है, आसमान में जो सूर्य है वो भी अरुण है और जमीन पर जो सूर्य है वो भी अरुण है. और आज भाई अरुण कांत यादव जी पूर्व विधायक, इनका भव्य सत्कार करते हुए हमें मजीद खुशी हो रही है. बहुत ही जबरदस्त कार्य आपका. अरुण कांत जी, आपके शान में एक ही चीज कहना चाहूंगा, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना. पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को साथ में लिए आगे है बढ़ते जाना. तो अरुण कांत यादव जी, आपको आने वाले दिनों की लाखों शुभकामनाएं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत प्रगति करें, लोगों के दिलों में अनहद चाहना हासिल करें और आपके जरिए उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान मिले. ये शुभकामनाएं हमारी ओर से. बहुत बहुत धन्यवाद अरुण कांत यादव जी, चंद्रकेश यादव जी और उनके साथ उपस्थित तमाम मेहमान. आइए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में. शुक्रिया. धन्यवाद हरीश. हमारे तमाम मुख्य अतिथियों का गुलदस्ता, शॉल और सम्मान चिन्ह देके उन्हें सम्मानित किया गया. आज वीआईपी डाइस की शोभा को बढ़ा रहे. गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त जैद खान. सामना करेंगे नए बैट्समैन विजय साहनी, ऑल इंडिया आइकॉन है, बिलरियागंज सुपर किंग के, जबकि एक ऑल इंडिया आइकॉन परवीन गेल आउट होके चले गए. जैद खान राइट आर्म राउंड स्टम्प्स अपने स्टेप में चूके, डेड बॉल. ऑन फील्ड अंपायर संजू सिंह और उनके साथ अंपायर गौरव यादव. इस मर्तबा हल्के हाथों से गेंद को कवच में पुश किया, फील्डर पे दबाव बढ़ाया, 1 रन से खाता खोला. वहां पे विजय साहनी ने कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 30 रन, 1 विकेट. बहुत अच्छी बल्लेबाजी हम कहेंगे शिरवात अख्तर शेख के सामने बहुत ही ज़बरदस्त रही, लेकिन उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रनआउट हो गए वहाँ पर बैट्समैन परवीन गेल.
जैद खान, अच्छा बॉलिंग एक्शन है। इस मरतबा दूर रखा था, कट करने की कोशिश, वाइट। एक रन और आता हुआ स्कोर में 31 रनों पे पहुंचा स्कोर यहां पर बिलारियागंज सुपर किंग का। आज मौसम बहुत गर्म है। ओह, क्या शार्प इन कटर थी। ओवर समाप्त होता हुआ बहुत ही तीखा इन कटर वहां पे फेंका था जैद खान ने। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने कुल मिलाकर 31, विकेट गिरा है एक। 7-7 ओवर का मुकाबला है। बैटिंग साइड को मैं फिर से आगाह करता हूं कि 5वें ओवर तक आपको बैटिंग पावर प्ले लेना है और 5 गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे, 2 गेंदबाज 2-2 ओवर करेंगे और बचे हुए 3 गेंदबाज 1-1 ओवर करेंगे। आज ग्रुप ए का फैसला हो जाएगा। कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी ने 4 में से 3 मैच जीते और केकेआर ने अपने तीनों मैच जीते 3 में से। अभी उनका एक मैच बाकी है। अगर हम बात करते हैं गोपालपुर टाइगर्स की, उन्होंने 3 में से 1 मैच जीता है और बिलेरियागंज की हम बात करते हैं तो उन्होंने 1 मैच जीता है 3 में से। गेंदबाजी के लिए राजकुमार आए, सामना करेंगे उनका बाएं हाथ के बैट्समैन विजय साहनी। हालांकि हसन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 बहुत ही खूबसूरत आउट ड्राइव। ओ, क्या गेंद थी, पूरी तरह से खोल के रख दिया था। सरप्राइज रहे थे जब गेंद ने टिप्पा खा के बाहर निकली। राजकुमार आज के कुमार लग रहे हैं। कमाल की गेंद थी, बाल बाल बच गए वहां पर विजय साहनी जो ऑल इंडिया आइकॉन में खेल रहे। फिर अच्छी गेंद, अपील होती भी कॉट बिहाइंड की। उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम। अंपायर संजू सिंह पे कोई असर नहीं। कमाल की बॉलिंग, इस गेंद को आगे रखा था लगभग वाइड यॉर्कर। आपके पास जब वेरिएशन रहता है तो बल्लेबाज को पढ़ना बहुत मुश्किल रहता है। इस मर्तबा घुटना टेक और सीधा फील्डर के हाथ में विकेट टेक। कोई गलती नहीं की पीछे खड़े हुए फील्डर जैद ने। और कुल मिलाकर ये विकेट नंबर 2 गिरता हुआ यहां पर बिलरियागंज सुपर किंग का। शुरुआत बहुत अच्छी थी और अक्सर कहा जाता है वेल बिगन इज हाफ डन, लेकिन मोमेंटम को बरकरार रखना बहुत बड़ी चुनौती रहती है। दोपहर के खाने के बाद मुझसे जुड़ते हुए फिर से इस इलाके की बहुत ही सुरीली आवाज़ अफगान। ओवर नंबर 3 चल रहा है, 7 ओवर का मुकाबला है। पहले ओवर में 25 आए, दूसरे में 5 आए, तीसरे में अभी तक रन नहीं आया। दूसरे में 6 आए और तीसरे में रन नहीं आया। नए बैट्समैन इनर ग्लोव्स के साथ बल्लेबाजी को आए अबू जैद। सर पहले ओवर में बल्लेबाजी अच्छी किया था गिल, फिर उसके बाद रन आउट हो गए। अब गोपालपुर टाइगर हमलावर हो रहा है। अबू जैद सामना कर रहे हैं गेंदबाज राजकुमार का, जो मुड़ते हुए रेहान संजारी पवेलियन एंड की तरफ से। इस मर्तबा पैरों में निशाना था, ग्लांस करने की कोशिश, लेग बाय का इशारा, इंपैक्ट आउटसाइड डिले के स्टंप रहा होगा। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। 32 रन 2 विकेट, 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं राजकुमार, बैंग ऑन टारगेट। लाइन ऑफ अटैक उनका बिल्कुल विकेटों में है। इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरत कलाइयों का उपयोग, टर्न कर दिया पैरों के सामने आउटफील्ड में। 1 रन और आता हुआ स्कोर में। थोड़ा धीमा क्रिकेट हुआ है पहले ओवर के बाद। पहले ओवर में बहुत ही धमाकेदार शुरुआत हुई थी। 1 रन से स्कोर 33।
किस्मत पलटने में भले से समय लगे, लेकिन क्रिकेट के खेल को पलटने में पल दरकार है। अंदर आती हुई गेंद, मिस की हुक शॉट, इन कटर गेंद थी, अतिरिक्त उछाल था, यही कारण था कि बिल्कुल चेहरे के पास आई थी बैट्समैन हसन के। हालांकि हसन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 1 रन आता हुआ और स्कोर में कुल स्कोर 34 रन। 3 ओवर की समाप्ति, विकेटें गिरी है 2। आज का आखिरी मैच मेरे ख्याल से आज का आखिरी मैच केकेआर फाइटर्स गुलवा। टाइम, हाँ भाई टाइम का जरा सा ख्याल करें, टाइम का। केकेआर फाइटर और रेहान संजरी सुपरस्टार का मुकाबला अगला होगा। यस, केकेआर फाइटर्स गुलवा नसीरपुर के कैप्टन और रेहान संजरी के कैप्टन। आपको 7 ओवर से पहले हमारे टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। लेट मुंशी हनीफ टॉस बॉक्स, एहतेशाम खान मुमरा की बहुत मशहूर पर्सनालिटी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। एक मुमरा के नाम से उन्होंने 10 PL में भी अपनी टीम उतारी थी और बाली ट्रॉफी में सेमीफाइनल तक वो टीम खेली थी। सर, खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए सादिक सुल्तान। दोनों टीम अपना प्लेइंग 11 दे दें, केकेआर और रेहान संजरी सुपरस्टार। सादिक सुल्तान ने जो फील्ड अपने लिए लिया है, 3 खिलाड़ी ऑफसाइड में सर्कल में। पहली गेंद भूल-भुलैया गेंद थी, अंधाधुंध बल्ला चला दिया था बैट्समैन अबू जैद ने। देखिए, आंख बंद करके आप सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं, बल्लेबाजी नहीं कर सकते। ब्लाइंड स्विंग आगे रखा था, फिर टर्न होकर चली गई। कल के ओवर को अगर निकाल देते हैं ना, तो सादिक सुल्तान वन ऑफ द ग्रेट लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर, चाइना मैन बॉलर, बहुत अच्छी गेंदबाजी किया है, कल से सबक सीखा है। और अब हसन पहुंचे हैं अबू जैद से कि भैया एक एक गेंद का बड़ा महत्व है और ये मुकाबला हम लोग के वर्चस्व का है। सादिक सुल्तान लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स। ओ बढ़िया गेंद। देखिए, ऑल इंडिया आइकॉन भी है लेकिन आजमगढ़ आइकॉन भी है, और ये खिलाड़ी आजमगढ़ आइकॉन में है। इससे साबित होता है कि उन पे कितना भरोसा किया है। सादान एक फोटोग्राफर हैं, बड़ी प्यारी फोटो निकालते हैं। और 1 ओवर से किसका करियर खत्म नहीं होता है। ऑफ स्टंप के बाहर बैकफुट पे गए, पंच किया, पीछे खिलाड़ी है लेकिन गेंद पहले बाउंस पे, कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। थंपिंग कवर ड्राइव, टर्न होने का इंतजार किया, बैकफुट पे गए और पंच किया गेंद को, कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 38 रन 2 विकेट। इस मर्तबा तान दिया आसमान में, तारा मंडल में भेज दिया सादिक सुल्तान को। 6 रन। क्या गजब का शॉट है, पावर बैक स्ट्रोक, तीर निकला कमान से और जा मिला आसमान से। चंद्रयान के सफर पे भेज दिया सादिक सुल्तान को। कमाल का शॉट, बैक टू बैक 2 अच्छे स्ट्रोक आते हुए अबू जैद के बल्ले से। स्कोर एकाएक तेजी से बढ़ता हुआ 44। फिर से गेंद लॉन्ग ऑफ पे, 6 रन। अब हम कह सकते हैं कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी यहां पर अबू जैद की। और यहां पर ओवर भी समाप्त हो गए, 4 कुल स्कोर है, पूरे 50। बैटिंग पावर प्ले ऑन। यस, बैटिंग पावर प्ले का इशारा 7-7 ओवर का मैच है। बिलेरियागंज सुपर किंग के पूरे 50 होते हुए 4 ओवर में करंट रन रेट 12.5 का है। हालांकि विजय साहनी 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाए और 4 डॉट खेले, लेकिन अबू जैद ने कवर कर दिया है। कुल मिलाकर 8 गेंदों में वो इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं 17 रनों पर। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में चलता हुआ और
शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, रिश्ता ही मेरा प्यास का पानी से नहीं है। लेकिन आपके लिए हम लोगों ने किनली पानी की व्यवस्था कीजिए, किनली पानी पीजिए, हिट और फिट रहिए। कहते हैं कि किनली पानी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी। गेंदबाजी में मरता क्या ना करता जैद खान को बुलाया गया है ऑल इंडिया आइकॉन, क्योंकि अब रन बन रहे हैं। और अबू जैद ने भी इस वक्त मोर्चा संभाला है, सामना कर रहे फिर से अबू जैद। नहीं, हसन 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 है, हसन ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है, 2 चौके 1 सिक्सर लगा चुके हैं। बैटिंग पावर प्ले ओवर नंबर 5 चलता हुआ, दोनों टीमें टॉस बॉक्स में बैठ जाएं। इस मर्तबा बहुत ही कड़क शॉट है, लेकिन कारपेट के जरिए गेंद आउटफील्ड में पहुंची है, 1 रन। स्ट्राइक फिर अबू जैद के पास आया है। अब जैद और अबू जैद, हालांकि अबू बाप को कहा जाता है, जिस तरह हमारे साथ अबू साहब थे हमारे कमेंटेटर, खुशियों के बाप। अब जैद और अबू जैद के बीच में मुकाबला। हमारे मान्यवर इस वक्त हमसे विदा लेते हुए विशेष धन्यवाद, आप आए और शोभा बढ़ाई। पटकी भी गेंद थी, बैकफुट पे गए, अपर कट किया, शरीर के करीब थी, गेंद निकल गई है बाउंड्री पे। हालांकि शॉट उतना अच्छा नहीं था, गेंद को गुडलेन पे पटका था, कट के अंदर की जानिब आई थी। और शरीर के करीब अगर अपर कट कोई खेल सकता है तो दुनिया क्रिकेट में सिर्फ वीरेंद्र सहवाग। जी, वीरेंद्र सहवाग ने बताया था कि अपर स्ट्रोक क्या होता है। आप भूल गए सेंचुरियन पार्क 2003 भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला वर्ल्ड कप का, शोएब अख्तर शोएब अख्तर गेंदबाज। को जो पॉइंट के ऊपर खेले हुए शॉट थे। जैद खान अंदर गेंदों को काट रहे हैं। इस मर्तबा फिर अच्छी गेंद, जैसे को तैसा जवाब। देखिए, तेज गेंदबाज को कोई बड़ा शॉट लगता है तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, उसको थोड़ा गुस्सा आता है। आप पूरी हिस्ट्री उठा के देखिए, अगर कोई तेज गेंदबाज बल्लेबाज को बोल्ड करता है तो बल्लेबाज सर झुका के जाता है, और तेज गेंदबाज को अगर सामने सिक्सर लगता है तो फिर सर उसको झुकाना होता है। ये तमाम क्रिकेट के दाव पे चलते रहेंगे। इस मर्तबा बढ़ गया गेंद, परफेक्ट यॉर्कर, बोल्ड कर दिया वहां पर। यह है जैद खान का स्पेशल। सर, अभी हमारे बीच एक बहुत ही मेहमान खास जो हमारे हैं, वो आने वाले हैं आफ्ताब खान माहुल, जो सहारा ग्रुप, ऑनर ऑफ सहारा ग्रुप यूएई। बस कुछ पलों में आ जाएंगे, जिनका बड़ा अच्छा ताउन टूर्नामेंट में है, तो मुंतज़म इन्हें कमेटी उनका शुक्रिया अदा कर रही है। 55 रन पे तीसरा झटका लगा है। बैटिंग पावर प्ले चल रहा है, नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं। आयान शेख, बलेरियागंज सुपर किंग की तरफ से। हालांकि बलेरियागंज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, कभी कभी अगर मगर हो जाता है। इस मर्तबा ऑन द राइज खेला है, बहुत ही खूबसूरती के साथ कस के मारा हुआ स्ट्रोक, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। इस तरह के शॉट बहुत मुश्किल रहते हैं। पावर प्ले बैटिंग चल रहा है, बिल्कुल आंखों के नीचे ऑन द राइज खेला हुआ स्ट्रोक, बहुत ही खूबसूरती के साथ 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर 59 पे पहुंचा है। 59 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। वी आर इन ओवर नंबर 5। तो सर, बल्लेबाजी क्या कहेंगे? बेहतर बल्लेबाजी अब तक हुई है, रन ठीक ठाक बने हैं। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए जैद। इस मर्तबा नीची गेंद रही थी टिप्पा खाने के बाद, बकौल हरीश पंड्या, सबमरीन गेंद, शूटर भी कहते हैं इस गेंद को। 5 ओवर की समाप्ति, इस वक्त रन बने हैं 59 विकेटें गिरी है, 2 ओवर बचे हैं और डेथ ओवर की कहानी आइए सुनते हैं अफगान जी की जुबानी।
शुक्रिया सर। तो ये बहुत ही अच्छा मुकाबला चला है, दोनों टीम बराबरी के हैं। स्कोर 5 ओवर की समाप्ति पे है यहाँ पर 59 रन। और अभी एक मेहमान खास, मेहमान जीवाकार हमारे बीच आने वाले हैं। आफ्ताब खान, हॉनरेबल चीफ गेस्ट, माहौल से जिनका ताल्लुक आजमगढ़ माहौल से है, ऑनर ऑफ सहारा ग्रुप यूएई, आने वाले हैं इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाने के लिए। लेकिन 5 ओवर 61 रन एपीएल प्रीमियम लीग तमाम लोगों का वेलकम कर रहा है, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन कर रहा है कि आजा की अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा की पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है। खुशियों के जजीरों से सितारों की हदों तक इस मैच में सब कुछ थी, बस एक आपकी कमी थी। उस कमी को पूरा करने के लिए आए हैं हमारे हरीश पांड्या जी और सिद्दीक भावे जी। धन्यवाद, धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आजमगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 1 ब्रॉट टू यू बाय आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से ये टूर्नामेंट का आगाज 3 दिन पहले हुआ। आज तीसरे दिन के आखिरी मुकाबले के टॉस के लिए अब हम आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं। हमारे कैमरामैन यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। खेलने वाली टीमें हैं केकेआर फाइटर्स गुलवा नसीरपुर, और उनके सामने चुनौती रहेगी रेहान संजरी सुपरस्टार्स की। एक ग्रुप का ये आखिरी मुकाबला रहेगा। आज के आखिरी मुकाबले के बाद एक ग्रुप की जो पॉइंट की पोजीशन है टेबल पर वो क्लियर हो जाएगी। इस वक्त नंबर 1 पर 3 मैच में 3 जीत के साथ आगे चल रही है केकेआर फाइटर्स गुलवा नसीरपुर। नंबर 2 पर चल रही है कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी। 4 में से 3 मैच उन्होंने जीते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो एक जीत बिलरियागंज इनको मिली है, एक जीत अगर हम देखें तो गोपालपुर टाइगर्स को मिली है। तो जो टीम इस मैच को जीतेगी वो हो सकता है नंबर 3 पर आएगी। और रेहान संजरी सुपरस्टार टीम आशा करते हैं कि आखिरी मैच को जीतकर पॉइंट्स टेबल में वो भी अपना खाता खोले। तो कल से ग्रुप बी के मुकाबले शुरू हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त टॉस के लिए हम तैयार हैं। केकेआर फाइटर्स, उनके कोच है हमारे साकिब भाई, डॉक्टर साकिब, और उनके मेंटोर है लारिफ खान। तो आइए ये टॉस करने के लिए अब भाईजान हमारे साथ आ चुके हैं। आइए, दोनों कैप्टन का स्वागत है और टॉस को अंजाम दिया जाएगा। कॉलिंग किसकी रहेगी? रेहान संजरी सुपरस्टार्स, एपीएल या आईसीसी? एपीएल की कॉल है, एसीसी आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस असीम खान, 3 में से 3 और अब 1.5 घंटे बाद हो सकता है 4 में से 4। और ग्रुप को टॉप करने की ख्वाहिश जरूर आपकी पहले दिन से रही थी। इस आखिरी मुकाबले के टॉस को जीतकर आपने क्या डिसीजन लिया और क्यों? सर, हम लोग का लीग का आखिरी मैच है तो हम लोग पहले बैटिंग करना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले सारे मैच में टॉस जीत के फील्डिंग किए तो चेस तो कर लेते थे। अभी ट्राई करेंगे, बैटिंग करेंगे, देखते हैं क्या होता है मैच में। टीम में कोई चेंजेस? टीम में चेंजेस जो तलाक की जगह शादी खेल रहा है और बाकी सेम टीम है। बहुत बहुत शुक्रिया। रेहान संजरी सुपरस्टार टीम है, आखिरी लीग मुकाबला है और मैं चाहता हूं कि आप भी टेबल में अपना खाता खोलकर आगे बढ़ना चाहेंगे। तो ये आखिरी इंपॉर्टेंट मैच में आप स्कोर चेस करने जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी रेहान संजरी टीम को? हमारा तो वही प्लेइंग 11 सेम है जो पिछले मैच वाला है। कोशिश करेंगे कि यहाँ से जीत के जाए। लास्ट मैच हमारा ऑलमोस्ट हम लोग बाहर ही हो चुके हैं। अभी 2 पॉइंट ले ले तो ठीक ही लगेगा। अभी 4 मैच लॉस हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता। एक मैच सोच रहे हैं जीत के ही जाएं और नेक्स्ट सीज़न जहाँ से हमारी वीक हुआ है वहाँ से उसको पूरा फील करके आएंगे। जी, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, रेहान संजरी सुपरस्टार्स आर द बिग स्टार्स। और आप बड़े स्टार बन जाएंगे, यकीन जानिए, अगर आप केकेआर फाइटर्स को आज शिकस्त देते हैं। तो न्यूज़ फ्रॉम द मिडल इज केकेआर फाइटर्स गुलवा नसीरपुर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और पहले बॉलिंग करेगी रेहान संजरी सुपरस्टार्स। थैंक यू। तो रैयान क्रीज पर पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ये स्लॉग ओवर चल रहे हैं।
एक बढ़िया क्रिकेट देखने को मिल रहा है दर्शकों को आज की शाम में। इसके बाद एक और बड़ा दिलचस्प मुकाबला दर्शकों को सामने देखने को मिलेगा। दोनों टीमें बहुत मजबूत है। टॉस की प्रक्रिया हो चुकी है। अच्छी गेंद मिडिल स्टंप पर थी, सफल करते हुए खेलना चाह रहे थे। हालांकि ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7 ओवर की समाप्ति पर 6 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या है 70 रन। बढ़िया रन गति बरकरार रखी है। बढ़िया लय प्राप्त कर ली थी। प्रवीण गेल और हसान ने एक बड़ी बढ़िया शुरुआत दी थी अपनी टीम को। हालांकि विजय साहनी, अबू जैद ने कुछ बढ़िया हाथ दिखाए। अयान खान, अयाज शेख, अयाज शेख से जो टीम के कप्तान है, बिलरियागंज सुपर किंग्स के रीढ़ की हड्डी, द बैकबोन ऑफ द टीम। लेकिन आज जो परफॉर्मेंस टीम खोज रही है, इस अंतिम ओवर में कुछ बड़े रन्स बनाने चाहेंगे। उनके सामने गोपालपुर टाइगर्स के हमसे दूर छोर से शहबाज मैक्सी को लाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए। अंतिम 6 गेंदें डिलीवर होना शेष है। 7+7 ओवर का मुकाबला इस वक्त चल रहा है। एक लॉन्ग ऑफ है, एक लॉन्ग ऑन है, एक अगर हम लेग साइड पर हम देखेंगे जो फील्ड लगाई हुई है ऑन साइड की, उसमें एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग है, एक डीप मिड विकेट थोड़ा वाइड इस रखे हुए वी के आकार में। ये अच्छी बल्लेबाजी कर लेते मैक्सी। शहबाज के लिए पहली गेंद थोड़ी दूर बॉडी से रखी थी, लेकिन बल्लेबाज ने बल्ला ऊपर फेंका, गेंद सीमा रेखा के बाउंड्री के बाहर। 6 रन, बड़ी बाउंड्री अग्रसर की है कप्तान अयाज ने। एक बेहतरीन यूजफुल ऑलराउंडर है इस टीम के हार्दिक पांड्या है, जो बहुत उपयोगी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। इस जिनका ताल्लुक माहौल से है, लेकिन ये सहारा ग्रुप यूएई से आए हुए हैं दोस्त, मैं उनका वेलकम कर रहा हूं। मेहमान खास मरहबा कहा गया, अजीमुशान सहसा कहा गया। इस खेल के मैदान पे आपका मैं वेलकम कर रहा हूं, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप आजमगढ़ की शान बने हैं, इस खेल की जान बने हैं। एक और तीसरा बैक टू बैक बेहतरीन स्ट्रोक खेल रहे हैं, वहां पे बहुत ही खूबसूरत कैच किया गया है। जम करते हुए अयाज को पकड़ा गया, तीसरा छक्के के मूड में थे। और आफ्ताब खान हमारे बीच मौजूद हैं, जो ऑनरेबल चीफ गेस्ट ऑफ टूर्नामेंट एपीएल आजमगढ़ प्रीमियम लीग, जो दोस्त सहारा ग्रुप यूएई हैं, और एक बहुत बड़ा अच्छा ताउन रहा है और वेलकम किया है। बहुत ही शानदार उनका वेलकम किया गया कि मरहबा मरहबा आप आए तो बाहर आई। कि महफिल में 4 चांद लगाने के बावजूद जब तक ना आ पाए उजाला ना हो सका। तो ये आफ्ताब खान हमारे बीच आ चुके हैं, उनका वेलकम किया जा रहा है। काशिफ अबुल्लैस बल्लेबाज आए हैं। तो क्या जबरदस्त दोस्त ये खेल चल रहा है यहाँ पर। आफ्ताब खान भी इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं, उनका शुक्रिया, मेहमान खास हैं। और फिर ऊंचा स्टॉक, इस मर्तबा किसी के पास कोई मौका नहीं। ईश्वर का तीसरा छक्का, ईश्वर में तीसरा छक्का आया है। इसको उछलता हुआ मौजे मारता हुआ जा पहुंचा है अब यहाँ पर 88। काफी बाहर गेंद, वाइड बॉल कॉल्ड अंपायर। नाउ स्कोर 89।
तैयार है गेंदबाज रेहान संजीव पेविलियन से। एक और उम्दा स्ट्रोक घूम कर खेला गया, फील्डर मौजूद वहां डीप में है, भागते हुए आ रहे हैं, मिड विकेट की जानिब से फील्ड कर लेंगे। मात्र एक रन स्कोर जा पहुंचा है 90 रन। एक वक्त लग रहा था कि इतने रन नहीं बनेंगे, लेकिन बिलनियागंज सुपर किंग ने अपने गेम को शो किया है और रन बना रहा है। इसके बाद केकेआर फाइटर गुलवान नसीरपुर का मुकाबला रेहान संजीव सुपरस्टार से होगा। एक और वंडरफुल, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। जब आखिरी गेंद पे छक्के चौके लगते हैं तो कुछ पता होता है कि क्या होने वाला है आगे चलकर। स्कोर टॉस के लिए पहुंच जाए दोनों टीम। टॉस करवा ले सर हरीश पांड्या जी, और हमारे बीच जो आफ्ताब खान हमारे बीच मौजूद है, मैं उनका वेलकम कर रहा हूं। टॉस हो चुका है, टॉस ऑलरेडी हो चुका है। टॉस को जीता है केकेआर फाइटर्स गुलवान नसीरपुर ने। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है रेहान संजरी सुपरस्टार के सामने। आइए दोस्तों, अब सत्कार की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ब्लॉक प्रमुख, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है ब्लॉक प्रमुख की, और आज हमारे बीच सम्माननीय अजीत यादव तहबरपुर उपस्थित है। मैं हमजा शेख भाई से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर अजीत यादव जी का भव्य सत्कार किया जाए। शॉल उड़ाकर, गुलदस्ता देकर, सम्मान चिन्ह देकर ये भव्य सत्कार अजीत जी का होने जा रहा है। आपके नाम में ही जीत है अजीत जी। आप जीवन में जो भी कार्य करें, आपको बहुत बड़ी जीत हासिल हो, ये हम दुआ करते हैं। बहुत भव्य सत्कार यहां पर हमजा भाई द्वारा। अगला सत्कार कप्तान दीपक सिंह का होने जा रहा है। सिंह इज किंग। जब जब क्रिकेट खेला, जीतने के लिए खेला। और दीपक के बारे में तो यही कहना चाहूंगा, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। मेरी हदों को रोशन करने से तुम कब तक मुझको रोकोगे। कैप्टन दीपक सिंह, इनका सत्कार करेंगे हमजा भाई। आइए दीपक जी, क्रिकेट के मैदान में जब जब उतरे तब तब लोगों का दिल जीता। और दीपक जी का आजमगढ़ के साथ एक अनोखा रिश्ता रहा है। आजमगढ़ से रिश्ता दो लफ्जों में अर्ज, आधा मेरा कर्ज, आधा मेरा फर्ज। दीपक सिंह, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। अगला सत्कार उकरोड़ा से हमारे बीच पधारे हुए प्रधान अरविंद यादव जी का होने जा रहा है। मैं हमजा भाई से गुजारिश करूंगा अरविंद जी का भव्य स्वागत करें। अरविंद यादव जी जो कि प्रधान है उकरोड़ा के, हमारे बीच उपस्थित है, और उनका भव्य सत्कार करते हुए हमें बेइंतहा खुशी हो रही है। अरविंद यादव जी आज खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए हमारे साथ स्टेज पर उपस्थित है, और उनका एक भव्य सत्कार हमजा भाई के हाथों हम करने जा रहे हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार शॉल, गुलदस्ता और एक मेमेंटो यानी कि सम्मान चिन्ह। आपको भी आने वाले दिनों की लाखों शुभकामनाएं अरविंद जी। अगला सत्कार पूर्व क्रिकेटर अनिल यादव जी का हम करने जा रहे हैं। अनिल यादव जी, हमजा शेख के हाथों उनका सत्कार होगा। शॉल उड़ाकर, सम्मान चिन्ह देकर, गुलदस्ता देकर यह भव्य सत्कार संपन्न हुआ। बहुत जबरदस्त माहौल में ये आजमगढ़ प्रीमियर लीग खेली जा रही है, और आप तमाम मेहमानों के जरिए ये टूर्नामेंट को 4 नहीं 400 चांद लगे हैं, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आप तमाम हजरात को आने वाले दिनों की लाखों शुभकामनाएं हम दे रहे हैं। अभी अभी हमारे बीच शुभ आगमन हुआ है जनाब आफ्ताब खान साहब का, और माहौल से यानी कि सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज यूएई को वो रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे लिए खुशी का मौका है कि वो इस वक्त हमारे बीच तशरीफ लाए हैं और इम्पोर्टेंट मैच का मजा ले रहे हैं। वेलकम आफ्ताब खान साहब। आइए अब चलेंगे सीधा कमेंट्री बॉक्स में आगे की आंखों देखा हाल को सुनने के लिए। शुक्रिया।
बहुत ही खूबसूरत शाम आजमगढ़ की आप सभी के नाम। कभी सुबह तो कभी शाम ले गया मुझसे, तुम्हारा दर्द कहीं काम ले गया मुझसे। बहरहाल लौट चलते हैं इस मैच की तरफ, जहां पे जो लक्ष्य रखा है गोपालपुर टाइगर्स के सामने वो 97 का बिलारियागंज सुपर किंग ने। 7 ओवर का ये मुकाबला है। एक्सपर्ट्स कमेंट्स के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं हसन। हसन, एपीएल का सफ़र तीसरे दिन के समाप्ति की ओर, अख्ताम की ओर बढ़ रहा है और एपीएल की धूम मैं इसीलिए कहता हूं कि आजमगढ़ प्रीमियर लीग की झलक सारी दुनिया से अलग। क्या बात है। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा सर, जो आप महाराष्ट्र से चल के आए इस टूर्नामेंट पे। आपने एक ज़बरदस्त कमेंट्री की और पूरी तरह से ये टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो ये टूर्नामेंट पूरे हिंदुस्तान में बड़ा ही चर्चित टूर्नामेंट है। और पहला सीजन है जरूर, लेकिन ऐसे एपीएल आजमगढ़ प्रीमियर लीग जो उन नौजवानों ने जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कराने में बड़ी मेहनत की, मैं 2-4 नाम लेता चलूं, लेकिन सभी आजमगढ़ ने मिलकर इस टूर्नामेंट को कराया है। सिद्दीक भावे सर और कुछ खास जो हैं जो बड़ी बड़ी मेहनत की है। फहद पहले ओवर की गेंदबाजी तैयार, विकेटों पे पहली गेंद इस मरतबा बहुत ही करारा ड्राइव, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक। गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ के बाहर 4 रन। जूजी हॉफली थी, आगे रख दिया था गेंदबाज फहद ने। शहबाज मैक्सी बहुत अच्छे टच में है जी। शॉट तो बहुत अच्छी थी और शॉट में जो पावर होनी चाहिए थी वो पावर को जनरेट किया था शहबाज मैक्सी ने। ये कमाल का बल्लेबाज है, कमाल का खिलाड़ी है और आज इस मैदान पे कमाल की बल्लेबाजी भी कर रहा है। फहद फिर से ड्राइव हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, लेकिन कारपेट के जरिए लॉन्ग ऑफ पे 1 रन। देखिए यासिर शेख ने मुझे और हरीश पंड्या को 3 महीने पहले इनविटेशन दिया था इस एपीएल का। यासिर शेख की मोहब्बत, हालांकि हम भी कमेंट्री सीख रहे हैं, दुनिया में कोई भी कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। जी बिल्कुल सर, आपको आजमगढ़ में आके कैसा लगा? 3 दिन में इतना प्यार मिला है कि मैं सोच रहा था 2012 में क्यों नहीं आया। इस मरतबा फुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, 1 रन। एक बताना चाहता हूं कि बात मैं सरसरी नहीं करता और वजाहत कभी नहीं करता। एक ही बात मुझ में अच्छी है और बस मैं वही नहीं करता। वाह सर, जो पिछली गेंद थी एक अच्छा मौका था सादिक सुल्तान के पास। इस मरतबा ये बहुत खूबसूरत शॉट है। बिल्कुल सर, इस शॉट के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से शहबाज मैक्सी ने इस गेंद को छक्का लगाया और स्टैंड में इस गेंद को डिलीवर किया, क्या कहेंगे? देखिए शहबाज मैक्सी जो है बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बहुत अच्छे टच में भी रहे। बहुत ही खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइज तरीके से खेला हुआ, वेकेंट एरिया में 6 रन। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 12 पे। फहद, ओ बढ़िया गेंद, इस मरतबा अच्छी गेंद थी। गुड लाइन पे पड़ने के बाद अतरीक उछालता, आड़े बल्ले से इस तरह की गेंद पे रन बनाना मानो सहरा में पानी तलाश करना हो। जी बिल्कुल सर, और ये जो गेंदबाज है फहद लगभग 20-21 सालों की एज में आज पूरे आजमगढ़ में बड़ा चर्चित है ये खिलाड़ी। फहद, मैक्सी को गेंद हवा में खड़ी रह गई है, क्या कैच होगा? ओ बढ़िया कैच, बढ़िया कैच। ये अच्छी सोच है, क्योंकि क्रिकेट के मैनुअल को हम खोल के देखते हैं तो जिसके सामने कैच है उसी ने पकड़ना चाहिए। ये सर ये कैच नहीं, ये समझ लीजिए ये इन्होंने मैच पकड़ लिया है, नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी विकेट थी। माना आधा मैंने, मैच पकड़ लिया आपने कब्जे में बिलरियागंज। लेकिन कब्ल वक्त कहना होगा क्योंकि अच्छा बैटिंग लाइन अप गोपालपुर के जी पास भी है। देखिए क्रिकेट में प्रेडिक्शन जो रहता है वो करना बहुत मुश्किल होता है। भविष्यवाणी क्रिकेट में बड़े बड़े पंडितों की नहीं चली है और एक ही भविष्यवाणी पूरे क्रिकेट के इतिहास में सही हुई थी, वो थी सुनील गावस्कर की 1992 में
वर्ल्ड कप में। जी बिल्कुल सर, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अयान ने क्या खूबसूरत कैच पकड़ा, अब जा रहे हैं महमूद बादशाह। ये एक ऐसा बल्लेबाज है सर, पिछले कुछ सालों में जो क्रिकेट से थोड़ा सा दूर जरूर है, लेकिन क्रिकेट इनकी बहुत खूबसूरत थी आज से कुछ साल पहले। नए बैट्समैन महमूद आए हैं, जबकि सामना करेंगे बैट्समैन सादिक सुल्तान। शहबाज मैक्सी आउट होके चले गए हैं। गेंदबाजी के लिए वीआईपी एंड से अहमद कमाल को लगाया गया है। आप देखना है कि वाकई में अहमद कमाल कहते हैं कि हम हैं कमाल के, या बल्लेबाज कहते हैं हम हैं धमाल के। बहरहाल बहुत अच्छी जुगलबंदी चलती हुई, सूरज और बादलों के बीच में आंख में चोली चल रही है। मैदान पे गेंद और बल्ले के बीच मोहरका। कमाल की गेंद, लीडिंग एज है, साइड आर्म गेंद और आउट, कॉट एंड बोल्ड। क्या गेंद थी, साइड आर्म गेंदबाजी कर रहे हैं जिस तरह रजीता आजकल वर्ल्ड कप में कर रहे हैं श्रीलंका के। विकेट नंबर 2 गिरता हुआ और कठिनाइयों में इस वक्त गोपालपुर टाइगर्स। आइए एक और सत्कार की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारे पास एक पूर्व क्रिकेटर तबरेज भाई मौजूद है। तबरेज भाई गांगुली के नाम से काफ़ी मशहूर रहे अपने क्रिकेट करियर के दौरान, और मैं साकिब भाई जयराजपुर से प्रार्थना करूंगा कि उनका भव्य सत्कार किया जाए। आइए तबरेज भाई, आपका सत्कार करते हुए हमें मजीद खुशी हो रही है। एक वाकई में गांगुली जिस तरह मुनफरीद खिलाड़ी था, वैसे आप भी अपने ज़माने के मुनफरीद खिलाड़ी रहे हैं, और आपका सत्कार करते हुए हमें मजीद खुशी हो रही है। ये शॉल उड़ाकर, गुलदस्ता देकर, सम्मान चिन्ह देकर आपका एक भव्य सत्कार हो रहा है। पूरे आजमगढ़ में खुशी का माहौल है आजमगढ़ प्रीमियर लीग के जरिए, और आपका सत्कार ये सोने पे सुहागा बनकर आया है, जिसको आप स्वीकार करें। एक क्रिकेटर द्वारा दूसरे क्रिकेटर का सत्कार, ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये सत्कार कई सालों तक याद रखा जाएगा। तबरेज भाई, आपके जीवन का भी एक बहुत खुशी का लम्हा। आइए वापस लिए चलते हैं आपको कमेंट्री बॉक्स में। स्लॉक स्वीप किया है आते ही जैद खान ने। जैद खान बहुत ही डेंजरस कस्टमर है। इस सिक्सर से स्कोर उछलता हुआ पहुंचा, फिर मिस डायरेक्टेड यॉर्कर थी साइड आर्म अहमद कमाल की। कुल स्कोर पहुंचता हुआ 18 पे। तबरेज गांगुली साहब हमारे बीच में, उनका इज्जत अफजाई हुई। एक्स क्रिकेटर हैं। फूलों की है मिसाल तू मिसले बहार है, गुलशन के सारे फूल तुझी पे निसार है। वाह क्या बात है। बहरहाल अहमद कमाल, फिर साइड आर्म गेंद बहुत दूर कर बैठे हैं वाइट। ये मसला रहा है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो चाहे लोकल क्रिकेट। साइड आर्म गेंदबाजी में अधिकांश बार सिर्फ लसित मलिंगा ऐसे थे जिनके यॉर्कर्स बहुत परफेक्ट रहते थे। जी बिल्कुल, और मुझे याद भी है जब श्रीलंका और इंडिया के बीच वो मैच चल रहा था, जिसमें लगातार 6 गेंदों पे 6 यार्कर कर डाली थी महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ। वो अहमद कमाल कदमों का इस्तेमाल निकल के मारा है, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट, 6 रन जैद खान के बल्ले से। इससे अच्छा स्ट्रोक नहीं हो सकता है, और थोड़ी देर के लिए मानो ये लगाओ कि इयन बॉथम आजमगढ़ में आए हो, जिस तरह का ये शॉट खेला है जैद खान ने। जी बिल्कुल, क्या लाजवाब छक्का लगाया, बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल किया, सीधे गेंद को भेजा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस गेंद पे आधे दर्जन रन मिल गए सर। देखिए हर एक गेंद एक नई सोच होती है। क्या इस गेंद पे गेंदबाज यही सोचता कि काश हम विकेट लेने में सफल रहे या फिर डॉट गेंद कराएं, वहीं पे बल्लेबाज सोचता है कि शायद इस गेंद पे हम छक्का लगा सकते हैं, और वही किया यहाँ पे जैद खान ने। लाजवाब चल रहा है ये मैच, और बहुत अच्छा लग रहा है जो सिद्दीक भावे सर जो इस समय कमेंट्री कर रहे हैं, और हारिस पांड्या सर जैसे कमेंटेटर जिन लोगों के बीच कमेंट्री करने का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अहमद कमाल अपने स्टेप में चूके डेड बॉल। जैद खान कमाल के खिलाड़ी हैं। देखिए चहलकदमी करके शॉट्स खेलने के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की तरफ हम देखते हैं तो इंग्लैंड के इयन बॉथम और पाकिस्तान के आसिफ इकबाल ऐसे बैट्समैन थे जो ज़्यादा चहलकदमी करके स्ट्रोक्स लगाते थे।
इस मर्तबा स्लीपिंग शॉट खेलने की कोशिश, वाइड। उस गेंद का पीछा किया था मानो आजमगढ़ के रेलवे स्टेशन पे जैद खान ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 3 की गाड़ी पकड़ने की कोशिश की। जी बिल्कुल सर। और अक्सर मैं देखता हूँ कैनवस बॉल से जब गेंदबाज को एक छक्का लग जाता है तो अक्सर अफगान भाई गेंदें जो है ऑफ स्टंप से काफी दूर करने का प्रयास होता है, और वही प्रयास यहाँ पे अहमद कमाल भी कर रहे हैं, लेकिन सामने जैद खान है। ये इस स्विच मर्तबा स्विच हिट किया है, गेंद गली में, गली में कोई रन नहीं। देखिए जैद खान युवा खिलाड़ी है, सामने उनके जो है वो बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी है, लेकिन कहते हैं कि जब आपका आमना सामना हो जाए तो फिर ये नहीं देखा जाता है कि कौन सामने है। कमाल इस मर्तबा बढ़िया वापसी, बढ़िया वापसी, यही होना चाहिए। डूबती आंखों से मंजर नहीं देखे जाते और जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। वाह क्या बात है। लेकिन सर मुझको याद है 2021 का वो टूर्नामेंट, यहीं नसीरपुर की सरजमी पे वो टूर्नामेंट चल रहा था, 1 ओवर में 7 रन चाहिए थे और वहां पे सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा था सर। अहमद कमाल ने क्या कमाल की गेंदबाजी की थी, उस सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में 7 रनों को बचाया था और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। अहमद कमाल, ओहो इस मर्तबा गेंद आसमान में, फील्डर उसके नीचे, ओ माय गॉड। अब हम कह सकते हैं जैद खान का कैच छूटा है या मैच छूटा है। जी बिल्कुल सर, कहा जाता है ड्रॉप द कैच एंड ड्रॉप द मैच। कैच आपके हाथ से छूट गया तो मैच यकीनन छूटने वाला है, देखिए- अगर आप सही नहीं करेंगे तो। पकड़ने होंगे कैच अगर जीतने होंगे मैच, छोड़ोगे कैच तो हारोगे मैच। जी बिल्कुल, क्या बात है। और वो भी एक ऐसे बल्लेबाज का जो ऑल इंडिया आइकॉन जो इस समय अपने गेम को शो कर रहा है। और जैद यही कह रहे हैं सर की मौत कुर्सी की पेट सर इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए मुकाबला अभी भी बराबरी पे चल रहा है। 2 ओवर की समाप्ति पे रन बने हैं 27 और यहाँ से लगभग 70 रन 5 ओवर में चाहिए। 14 का आस्किंग रन रेट है। जैद खान जैसा बैट्समैन जब अगर पिच पे मौजूद हो तो ये आस्किंग रन रेट माने नहीं रखता है, क्योंकि बिल्कुल। बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हों। वो अपने आप में ही एक ऐसा नाम है जो आज पूरे हिंदुस्तान भर में अपने क्रिकेट को आगे लेके गया। और आज जैद जो बिल्कुल तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। हमजा एक युवा गेंदबाज हैं जो एक अच्छी गेंदबाजी करते हैं। हमजा को अब सही एंड से लाया गया है, क्योंकि पहले 2 मैचेस में हमजा ने उस एंड से अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन पिछला मैच उन्होंने वीआईपी एंड से किया था। अभी वो रेहान संजरी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद, फिर मिस टाइम स्ट्रोक है। अब की बार नहीं बच पाए जैद खान, शकर की गोली दी हमजा ने और बड़ी विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा विकेट निकालने में सफल है हमजा। और अयाज ने क्या कैच पकड़ा है, बड़ी ही खूबसूरत तरीके से कैच को रोका और एक बड़ी बिचली अपने जाल में किया। एक बड़ा घात लगता हुआ टीम गोपालपुर की टीम को। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं आकिब, जो बल्लेबाजी करते हैं। पिछले मुकाबले में सर अच्छी बल्लेबाजी की थी इन्होंने। बिल्कुल मैच विनर थे पिछले मुकाबले के आकिब। बहुत ही तगड़े मजबूत काटी के बैट्समैन है और मजबूत स्ट्रोक भी लगाते हैं। कहीं ना कहीं जैद खान टू माइंडेड रहे कि गेंद को उछाला जाए या फिर गेंद को नीचे से खेला जाए। हालांकि वॉजंट विकेट डिलीवरी, क्रिकेट में ऐसा होता है, यॉर्कर गेंद को खोद कर 6 लगता है और अच्छी खराब गेंद पे विकेट भी मिलता है। बहरहाल गेंदबाजी के लिए हमजा तैयार, नए बैट्समैन आकिब आए। अब अगला मैच के बारे में क्या कहेंगे? 2 बड़ी टीमें हैं जो बिल्कुल तैयार है अपने गेम को शो करने के लिए। एक तरफ केकेआर लगभग क्वालिफाई हो चुकी है, जी, क्योंकि बिल्कुल। 3 मैचेस केकेआर जीत चुकी। जी अब तक सबसे बड़ी जीत केकेआर ने की है। कल के दिन आखिरी मैच चल रहा था, 1 ओवर में 20 चाहिए थे। आबिद ने क्या छक्के लगाए थे। हमजा आकिब को घुटना टेक और सिक्सर देख सीधा दर्शकों में भेजा है, स्लॉग स्वीप करते हुए 6 रन। जी वाड़ा शॉट, जितनी भी तारीफ की जाए कम, क्योंकि इस बल्लेबाज के बाजुओं में वो ताकत है और उसी ताकत के साथ इस गेंद को चलता बनाया। लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक और छक्का जड़ दिया टीम गोपालपुर ने। लेकिन अच्छा स्कोर खेल उछलता हुआ 33 पे पहुंचा है। देखिए इस तरह का जो इक्वेशन रहता है हसन,
जी उसमें आपको 1 से 2 बड़े शॉट खेलना होते हैं। थोड़ी चर्चा हो रही है, शायद गेंद बदली जा रही है। आप देख रहे हैं आजमगढ़ प्रीमियर लीग की झलक सारी दुनिया से अलग। एपीएल की खूबसूरत शाम में आपका पुरतबाक इस्तकबाल है। हार्दिक स्वागत है एपीएल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और एससीसी कमेटी की तरफ से। हमजा, रेहान, संजरी एंड की तरफ से। ओहो, क्या शॉट खेला है, बिल्कुल झाड़ू शॉट, स्वीप कर दिया गेंद को गैप में, 4 रन। जी वाह, बड़ा शॉट, जितनी भी तारीफ की जाए आकिफ की कम। आते ही एक छक्का लगाया लॉन्ग ऑन पे, फिर एक चौका लगाया यहाँ पे स्क्वायर लेग बाउंड्री के करीब निकलता हुआ 4 रन। सर इन दर्शकों के बारे में क्या कहेंगे आप, जो बहुत प्यारे दर्शक जुड़े हुए हैं? हमजा इस मर्तबा कटर थी, समझ नहीं पाए, अपने आप से नाराज हुए, हाथ भी घुमाया लेकिन भूल गए कि दूध से दही एक बार बन गया तो दही से दूध नहीं बनता। जो हुआ सो हुआ। ऑडियंस बहुत लव करती है आजमगढ़ की क्रिकेट को। आजमगढ़ और उसका परिसर जितना है यहाँ पे क्रिकेट वाकई में बहुत ज़्यादा। मैं देख रहा हूँ पहली गेंद से जब आता हूँ तो पैक क्राउड रहता है। हमजा, आकिब को बल्ले के अंदर लगी, फिर स्वीप करना चाहते थे, शॉर्ट वाइडिश फाइन लेग पे खिलाड़ी, 1 रन आता हुआ स्कोर में। मेरा ख्याल है कि गोपालपुर टाइगर्स ने भी तय कर लिया अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। जी बिल्कुल। और सर जहां तक सवाल रहा क्रिकेट का, तो पूरे पूर्वांचल में मेरा जहां तक अंदाज है कि आजमगढ़ में क्रिकेट सबसे ज्यादा खेली जाती है। एग्जैक्टली। हमजा इस मर्तबा घूम के खेलना चाहते थे, गेंद ने घुमा दिया वहां बल्लेबाज महमूद को। ओवर समाप्त होते हुए 3, कुल स्कोर है 38 और यहां से बचे हुए 4 ओवर में जो जीतने के लिए रन चाहिए 59। अब आस्किंग रन रेट काफी बढ़ चुका है, 15 को छूता हुआ आस्किंग रन रेट है। देखिए आपके पास विकेट है तो आप रिस्क ले सकते हैं, 7 विकेटें बाकी है। जी बिल्कुल सर, और मैं तो यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा चांस लीजिए, जो आपका नेचुरल गेम है उस गेम पे जरा फोकस कीजिए और 2-4 बड़े स्ट्रोक लगाए टीम के लिए, ताकि टीम का जो है वो बेड़ा कम से कम पार किया जाए और मुकाबले में आगे जा सके आप। आपने सही कहा, चांस जरूर लेना चाहिए, क्रिकेट में लेना चाहिए और रिस्क वहीं लेता है जो बहादुर रहता है। किस्मत भी बहादुरों के कदम चूमती है। चांस जरूर लेना चाहिए, डांस पे चांस नहीं, यहाँ पर बल्लेबाज ने चांस लेना चाहिए। बहरहाल गेंदबाजी के लिए अयाज शेख टीम के कैप्टन आए, बल्लेबाजी बहुत अच्छी की। अयाज शेख बैकफुट पे गए, पंच किया, पीछे खिलाड़ी रखा गया है डीप एक्स्ट्रा कवर में, 1 रन। अयाज की एक खासियत है कि बल्लेबाज के बिल्कुल करीब गेंदों को रखते हैं, ज़्यादा रूम नहीं देते और बल्लेबाज को जब रूम नहीं मिलता है तो वो धूम नहीं मचाता है। जी बिल्कुल। अयाज, ओ बहुत ही करारा ड्राइव, लेकिन जो ट्रैप है उसी पर गेंदबाजी होती हुई। डीप एक्स्ट्रा कवर रखा है, जानबूझ के गेंदों को पीछा रख रहे हैं। टर्न होने के बाद बल्लेबाज पंच जरूर कर रहे हैं लेकिन डीप में फील्डर को पा रहे हैं। बहुत अच्छी आउट स्विंग करा रहे हैं यहाँ पे अयाज शेख, बड़ी अच्छी। अयाज शेख इस मर्तबा फिर उसी खिलाड़ी की तरफ गेंद जा रही थी लेकिन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी पहले पहुंचे हैं, 1 रन। सर जो देख रहे हैं गेंदबाजी जो चल रही है, कहीं से कोई ऐसा मौका नहीं दे रहे हैं अयाज कि गेंद को आप स्टैंड में डिलीवर कीजिए। हर एक गेंद को बड़ी बारीकी के साथ कर रहे हैं, बड़े लाइन और लेंथ के साथ इस समय गेंदबाजी चल रही है अयाज शेख की। अधिक करना होगा, अधिक ओहो। कर दिया, गगनचुंबी सिक्सर, 6 रन। ये महमूद बादशाह है और जिस तरह से इनका 2-4 साल पहले 5 साल पहले मैंने खेल देखा था सर, वो खेल और अब का खेल बड़ा अंतर है इनके में, लेकिन बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और यकीनन तौर पे अगर बल्ले पे सही तरह से संपर्क होने लगेगी गेंद तो ये जो 50-60 ये 55 जो है वो कम पड़ जाएंगे। देखिए गलती कर बैठे थे वहां पे, अयाज सामने रख दिया था गेंद को महमूद पाशा के। ओ इस मर्तबा कटर थी, ये हवा में घूमती हुई
लहराती हुई, कांटा बदलती हुई पहुंची। देखिए, बल्लेबाज के सामने गेंद को रखना ऐसे जैसे आप शेर को मांस दे रहे हो। जी, बिल्कुल। होना ये चाहिए कि शेर को घास दो और घोड़े को मांस दो, दोनों मर जाए। सही बात है, लेकिन अयाज एक अच्छे मोमेंट। इस मरतबा पंच कर दिया है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है। ओ माय गॉड, व्हाट अ एक्सीलेंट स्टॉप। 3 रन अपने टीम के लिए बचाए। चीते की रफ्तार से झपटे थे वहां पर हसन। ये खिलाड़ी बहुत अच्छा है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 48-48। अब एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव होता है, वो दबाव अब कहीं ना कहीं बिलरियागंज बना रही है गोपालपुर के प्लेयरों पे। बिल्कुल, दबाव तो जो दबाव को झेलेगा वहीं तो क्रिकेट खेलेगा। ये जी, मैं नहीं बिल्कुल। कहता, ये MS धोनी भी कहते हैं, ये शाहिद अफरीदी भी कहते हैं। और बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। दबाव में बड़े बड़े रति महारथी सुरमा 30 मार खा जाते हैं। बचे हुए जो 3 ओवर है उसमें रन चाहिए 49, हिट आउट और गेट आउट। सर देखिए, पिछले ओवर में सिर्फ 10 रन आए थे और अब 18 गेंदों पे 49 रन। क्या देख रहे हैं सर कि किस तरह से ये गेम चलने वाला है? इस ओवर में अगर गोपालपुर को जीतना है तो 20 के करीब देखना होगा। पाशा को जड़ से गेंद लगी, बहुत बढ़िया गेंद हमजा की, बल्ले के अंदर लगी, जड़ में गेंद किया थी। और डेथ ओवर में इस तरह की गेंदबाजी बहुत ही इफेक्टिव रहती है जब बल्लेबाज बड़े शॉट्स के लिए खेलता है। जी बिल्कुल सर। और ये आजमगढ़ प्रीमियर लीग, और इस लीग में आप देख रहे हैं इस समय एक बिल्कुल नौजवान युवा खिलाड़ी जो इस समय गेंदबाजी कर रहा है, बिल्कुल डेथ ओवर में गेंदबाजी दी गई है, तो यकीनन ये कहीं ना कहीं उनके अंदर काबिलियत होगी तभी। हमजा की गेंद बैठ के खेला है, एलिवेशन नहीं है ज्यादा, ऑफ स्टंप के बाहर से खेला था, लगभग काऊ कॉर्नर और वाइडिश लॉन्ग ऑन के बीच में इस कैच को अंजाम दिया है। आकिब की बारी समाप्त होने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि कठिनाइयां बढ़ती हुई टीम गोपालपुर टाइगर्स के लिए। जी बिल्कुल, अबू हमजा ने बड़ी अच्छी गेंद की, लेकिन वहां पे एक अच्छा कैच पकड़ा परवीन गेल, जो ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर जो इस समय टीम बिलरियागंज में भी देख रहा हूं। अब नए बल्लेबाज कौन से जा रहे हैं? अतहर अख्तर शेख जा रहे हैं। हालांकि अख्तर शेख बहुत कम बल्लेबाजी करते हैं। जी बिल्कुल सर, और ज्यादातर ये महाराष्ट्र में क्रिकेट खेलते हैं और आप अच्छे से जानते होंगे इनकी नो जो डाउट क्रिकेट एट है। ऑल, बाली ट्रॉफी 2018 के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। कई ऐसे स्पर्धाएं जो सिटी क्रिकेट में होती है उसके वो बेस्ट बॉलर रहे। लेकिन एक मैच मुझे याद आता है कि 2019 में अख्तर शेख ने गोल्डन 6 लगा के धनेश कुकसे को जिताया था आखिरी गेंद पर। सामने महिंद्रा टीम थी। जी बिल्कुल, लेकिन एक अच्छी गेंदबाजी के साथ अब आगे बढ़ी है टीम बिलरियागंज। जबरदस्त। हमजा अपने स्टेप में चूके, डेड बॉल। चार खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल में है। बैटिंग पावर प्ले चल रहा है। अख्तर शेख को स्लॉक कर दिया, फील्डर मौजूद। अख्तर आए भी और चले गए। हमजा हैट्रिक पे हैं और अब तक APL में किसी भी गेंदबाज ने हैट्रिक नहीं किया है। हालांकि APL में 2 अर्धशतक आए हैं। जी, और एक हैट्रिक छक्का लगाया था वो है अकबर खान AK-47 जो तीन बल्लेबाज थे जिन्होंने हैट्रिक सिक्सर अब तक लगाया जी है। पहला जो हैट्रिक आया था सर अकबर खान के बल्ले से आया था, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी गेंदबाजी के साथ अबू हमजा अपनी टीम को पूरी तरह से आगे लेके चले। और मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ यासिर अरफात, आसिम खान। और अख्तर शेख को देखिए, निराश कदमों से टेस्टी बाइट डगआउट में जा रहे हैं, शायद ये कहने के लिए कि हमजा को की गेंदबाजी को मैं नहीं समझा। जी बहुत अच्छी वेरिएशन के साथ गेंदबाजी चली है। लेकिन सर इस APL पे जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, जरा उनका नाम लेते चलो। यासिर अरफात, अकबर खान, आसिम खान, साकिब भाई गुलवा, साकिब भाई जराजपुर, शहनवाज शेरवानी, और तमाम ऐसे चेहरे हैं जो बड़ी मेहनत की है और आज कहीं ना कहीं ये आजमगढ़ की जो लीग है बहुत दूर तक लेके जा रहे हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो आपकी है, ये कुछ नाम है जो बहुत फोकस पे आपने लिए हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है पूरे 50 हैं। 50
लोग हैं जिन्होंने सफल किया। हैट्रिक गेंद, वो निकलती हुई वहां पर। सर मैं तो पूरे आजमगढ़ को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, जिस तरह से आजमगढ़ ने इस टूर्नामेंट में चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया। आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और मैं आभारी भी रहूंगा आप सभी लोगों का, जिन लोगों ने इस टूर्नामेंट को कराने के लिए और जिन्होंने अच्छा एक ताउन दिया, इस टूर्नामेंट में योगदान किया, सबका शुक्रिया है। हमजा लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है मैक्सवेल के अंदाज में 6 रन। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि एपीएल के मोस्ट विकेट टेकर जिस तरह मधु शा ने वर्ल्ड कप में 18 विकेट लिए हैं और एपीएल में अब तक 10 विकेट हाईएस्ट विकेट टेकर हमजा है। जी बिल्कुल। और जहां तक मेरा सवाल रहा, इस आईपीएल में आजमगढ़ प्रीमियर लीग में 2-3 ऐसे गेंदबाज हैं अब तक बड़ी विकेट ली हैं। अंकुर सिंह उसमें एक नाम आ रहा है, लेकिन वो सबसे ज्यादा विकेट अभी तक लेने वाले हमजा है। जी बिल्कुल सर, मैंने आपसे कहा था कि ये विकेट लेने में 2-3 नाम है जो अब तक मैं देख रहा हूं। अगली हमजा गेंद। अच्छी गेंद आगे रखा था, बढ़िया ओवर। अब 2 ओवर में कितने चाहिए? मिशन इम्पॉसिबल धीरे धीरे बनता हुआ और 2 ओवर में 42 रन चाहिए। क्या होनी को अनहोनी में बदलेंगे बल्लेबाज? देखिए, होनी को अनहोनी में 2 अप्रैल 2011 को बदला था जब रजनीकांत, आमिर खान और धोनी मैदान पे थे और किसी ने कहा था कि होनी को अनहोनी कर दे। होनी को अनहोनी एक जगह जब जमा हो तीनों, रजनी, गजनी और धोनी। वाह क्या बात है। लेकिन सर उसमें कुछ मैं नाम लेता चलो इस टूर्नामेंट में जिन्होंने बड़ा योगदान किया। डेथ ओवर में डेथ ओवर की कहानी सुनते हसन और उनका साथ निभाएंगे कमेंटेटर अफगान। और बड़ा अच्छा खेल इस समय दोनों टीम खेल रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं उसमें कुछ नाम लेते चलूं दोस्तों जिन्होंने बड़ा योगदान किया इस टूर्नामेंट में। एमएम स्पोर्ट्स 70-70 आजमगढ़, खान टेंट हाउस नसीरपुर और नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल मुकेरीगंज आजमगढ़, अफगन 70-70 सरायमीर, हयात हेल्थ सिटी हेल्थ केयर। इस बार एक अच्छी शॉट, 1 बाउंस 4 रन। ये महमूद बिल्कुल अब इस तरह से बल्लेबाजी करनी है आपको कि हर गेंद को लॉफ्ट करना है और कहीं ना कहीं कुछ बड़े रन के तरफ बढ़ना है आपको। और महमूद यही कह रहे हैं कि कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। तो क्या आज मौसम बिगड़ेगा इस मैच का? और अगला मैच एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है। एक तरफ होंगे सलमान मिर्जा तो दूसरी तरफ होगी काली आंधी अकबर खान। AK-47 चलने वाली है इस मर्तबा। व्हाट अ शॉट, अनदर बिग बैंग 6 टू महमूद बादशाह। कहीं मौसम बिगड़ा है, मौसम पूरी तरह से अंगड़ाई ले रहा है और महमूद यही कह रहे हैं कि ये अभी तो अंगड़ाई है, आगे और भी लड़ाई है। तो लड़ाई को पूरी तरह से जारी रखा हुआ है, जंग बिल्कुल जारी है। और कहा जाता है स्कोर जो है 65 बन चुके हैं, 65 बन चुके हैं। और महमूद यही कह रहे हैं कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। इस मर्तबा ये वाइड गेंद हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, अयाज से थोड़ा सा दबाव में। और महमूद यही कह रहे हैं कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। आज इस मैदान पे एक अच्छी बल्लेबाजी होने वाली है। महमूद बादशाह बिल्कुल तैयार, अयाज शेख तैयार। इस मर्तबा एक खूबसूरत शॉट, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन यहां पे विजय शाह ने लाजवाब फील्डिंग किया, एक अच्छा बचाव किया। 2 रन तीसरे की मांग कर रहे हैं लेकिन नहीं जी, धैर्य रखिए। महमूद ने कहा 2 ही रन से संतुष्टि मिली। स्कोर अब मैं देखता हूं बड़ी तेजी के साथ बढ़ता हुआ इस समय 68 रन, 68 स्कोर बोर्ड पे जुड़ गए हैं। शुक्रिया आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों का जो कुर्बू जवार से चल के आए इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं। आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अयाज अगली गेंद, ये बहुत खूबसूरत गेंद थी, आउटस्टैंडिंग डिलीवरी बाय अयाज, बिल्कुल ब्लैक होल में गेंद को कर दिया। ये जो परफेक्ट यार्कर आप कह सकते हैं। और क्रिकेट जगत में कहा जाता है 2 ही करों का सम्मान किया जाता है,
पहला तो सब चीन रमेश तेंदुलकर, दूसरी परफेक्ट यारकर। गिर गई तो काम बन गया गेंदबाज का, अन्यथा बल्लेबाज उस गेंद पे कहीं ना कहीं बड़े स्ट्रोक जड़ देते हैं। अगली गेंद तैयार। इस मर्तबा हो बड़ा शॉट, एक और छक्का लगा यहां पे महमूद बादशाह का। और आज कहीं ना कहीं बादशाहत चल रही है, महमूद का बल्ला अच्छा चल रहा है, महमूद का बल्ला माशाअल्लाह। क्या इस मैदान पे एक जबरदस्त पारी चलने वाली है। 7 गेंदों पे 23 रन, 7 गेंद आने वाली है, 23 बनाने हैं, ये बिल्कुल फंस सकता है ये मैच। अयाज अगली गेंद। इस मर्तबा यहां पे क्या फंसाया है, क्या गेंद जो है कैच होगा। हो ये हाथ में जरूर आया लेकिन हाथ से गेंद छिटकी, लेकिन अच्छा प्रयास किया था इस फील्डर ने। एक के साथ अब स्कोर जो है वो धीमे धीमे पहुंचता हुआ 75 रन। अभी भी 22 रनों की और जरूरत आने वाली 6 गेंदों में, 6 गेंद 22 रन। हमने देखा था वो केकेआर का मैच जो पहले दिन चल रहा था, उसमें भाई थोड़ा सा वक्त का ख्याल कीजिए, वक्त का ख्याल कीजिए। 6 गेंदों पे 22 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 6 गेंद 22 रन, बहुत महत्वपूर्ण गेंदें होने वाली है। वेरी वेरी डेंजरस। दोनों टीमें जो है बड़ी खूबसूरत तरीके से अपने गेम को आगे तक लेके जा रही हैं, लेकिन अब 6 गेंदों पे 22 रन चाहिए। ये क्या होने वाला है। अब उल्लेस जो है इस वक्त गेंदबाजी एंड पे, ये डेथ ओवर की गेंदबाजी किस तरह से चलने वाली है। और ये जो वर्ग कहा जाता है क्रिकेट जगत में सबसे ही खतरनाक वर्ग कहा जाता है, और खासकर गेंदबाजों पे बहुत दबाव होता है। गेंदबाज क्या करने वाले हैं, बल्लेबाज क्या करने वाले हैं, सब कुछ देखने वाली है गेंद। ये आने वाली 2 गेंद बहुत कुछ तय कर जाएगी इस मुकाबले को आगे तक ले जाने के लिए। बहरहाल रकीब मिर्जा भी पूरी तरह से मुस्कुरा रहे हैं कि शायद हमारी मेहनत जो है आज कहीं ना कहीं रंग ला गई है। और कमर आसिफ साहब जो कस्बा माहौल बिल्कुल इस समय लगे हुए, पहले दिन से लगातार इस टूर्नामेंट से लगे हुए हैं, शुक्रिया आपका। और मैच को कंटिन्यू रखें आप लोग दोस्त, मैच जो है कंटिन्यू रखें। अबुल्लैस तैयार, महमूद बादशाह तैयार, अगली गेंद तैयार। इस मरतबा लो फुल टॉस गेंद थी, गैप में गेंद को खेला है, क्या निकल जाएगी। 4 रन, 1 बाउंस 4। ये तो मैच में है जो बिल्कुल ट्विस्ट सा आ चुका है। और महमूद लगातार कह रहे हैं कि कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। और आज कहीं ना कहीं इस बगवार ग्राउंड पे मौसम बिगड़ रहा है और बड़े अच्छे तरीके से बल्ले चले। अब चाहिए 5 गेंदों पे 18 रन, 5 गेंद 18 रन। ये आने वाली 5 गेंद 18 रन किस तरह से चलने वाली है। मैच को कंटिन्यू रखें आप लोग दोस्त, मैच को कंटिन्यू रखें, क्योंकि इसके बाद एक और मैच है जो खेला जाएगा केकेआर फाइटर बनाम रेहान संजरी, जो बिल्कुल तैयार है। दोनों टीम, टॉस हो चुका है, आसिम कैप्टन ने टॉस जीता, पहले करने का लिया है फैसला बल्लेबाजी का। तो तैयार, अगली गेंद अबलेस। इस मर्तबा यहां पे पुल किया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के करीब। आयान, हो ये बहुत बड़ी विकेट हो सकती थी। बिल्कुल एक आसान सा कैच ड्रॉप किया और एक तो जरूर मिला है, एक रन आउट के रूप में विकेट भी आएगी। तो इस गेंद पे 1 रन कहीं ना कहीं आया है। अभी अंपायर शायद कॉल की जा रही है, क्या रन शॉट है या फिर क्या है, अंपायर अभी बताएंगे। लेकिन इस बीच मैं उन तमाम चेहरों का नाम लेते चलो जिन लोगों ने बहुत मेहनत की। रकीब मिर्जा, सापुर मगलानी, इंतखाब भाई, क्या है, रन शॉट है। तो दोस्तों मैं नाम लेता चलो जो इस टूर्नामेंट में बड़ा मेहनत की, पूरे गुलमा गौरी नसीरपुर और तमाम जो नौजवान जो इस समय इस मैदान के ऊपर मैं देख रहा हूं, सभी लोगों ने बड़ी मेहनत की और अक्सर जो बड़ी मेहनत की इस टूर्नामेंट में। और इस टूर्नामेंट में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो लगभग इस टूर्नामेंट को कराने के लिए 5 से 6 महीने तक स्ट्रगल किया, हर एक दिक्कतों का सामना किया और आज कहीं ना कहीं ये टूर्नामेंट अपने कामयाबियों की तरफ बढ़ा है। भाई फील्ड में आप लोग सजावट दे लें, फील्ड पॉइंट को तरतीब दे लें। और दोस्तों मैं कुछ नाम लेता चलो जिन्होंने बड़ी मेहनत की इस टूर्नामेंट में।
साकिब भाई गुलवा गौरी, साकिब भाई जराजपुर, रकीब मिर्जा शाहपुर मुगलानी, मिर्जा इंतखाब शाहपुर मुगलानी और आसिम खान नसीरपुर, कासिम खान नसीरपुर, अकबर खान नसीरपुर, शहनवाज भाई जो सिरमा से आज लगभग 10 से 15 दिनों तक इसी सरजमी पे रह के पूरा काम किया, और अफगान भाई, अफगान 70 सरायमीर जो पहले दिन से लगातार जुड़े हुए इस टूर्नामेंट थे। और मैं देख रहा हूं यहाँ पे आसिफ भाई, राजकुमार को शायद रन आउट करार दिया गया है और एक रन शायद है, एक रन जरूर आया है, लेकिन राजकुमार की विकेट भी आई है। मैच को थोड़ा कंटिन्यू रखिए दोस्त। अब अबूजर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अबूजर किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे? 4 गेंदों पे चाहिए 17 रन। हसन, मैं देख रहा हूँ कि जैद बेचैन है, लेकिन जैद ये इंटरनेशनल का नियम है, उसमें क्या किया जाए कि यहाँ जरा सा देखने में लगता है कि ये तो गलत हो रहा है, लेकिन जो इंटरनेशनल नियम वही फॉलो हो रहा है यहाँ पर। जी, हर एक व्यवस्था है अफगान भाई, हर एक व्यवस्था। अबूजर जो बल्लेबाजी करने के लिए आए, अभिलेष तैयार। ओहो, ये अफगान भाई, ये समझ लीजिए ये गेंद सोने पे सुहागा थी। इस गेंद को तो इतने दूर भेजना चाहिए था कि गेंद भी शर्मा जाए ग्राउंड में आने के लिए, बहुत दूर जानी चाहिए थी ये गेंद। भाई फील्ड पॉइंट को तरतीब दें टीम बिलरियागंज। फ्लाइट दिया था, ललचाया था, 2 धारी तलवार थी और ये यही बचा है, कुछ ऐसा अलग करना होगा तब जाके काम बनेगा। जी बिल्कुल, तीनों गेंद को स्टैंड में डिलीवर करना होगा तभी काम बनेगा टीम गोपालपुर का। चलिए, इस मुकाबले में अब पकड़ बना रही है टीम बिलरियागंज। दोस्तों, इस टूर्नामेंट में बहुत योगदान रहा एमएम स्पोर्ट 70 आजमगढ़, नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल मुकेरीगंज आजमगढ़, अफगान स्पोर्ट 70 का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं, आजमगढ़ प्रीमियर लीग का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं और हयात हेल्थ केयर सेंटर का भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं, जिन लोगों ने चढ़ बढ़ के इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। इस मर्तबा एक खूबसूरत शॉट, गेंद दे जाएगी आधे दर्जन रन, और इसी आधे दर्जन रनों के साथ अब स्कोर में देख रहा हूं स्कोर बोर्ड पे 86 बन चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूर है टीम इस समय गोपालपुर, बहुत दूर जाते हुए इस मुकाबले से। ये गेंद, ओहो, लो फुल टॉस जरूर थी, संपर्क बढ़िया हुआ, क्या गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के करीब, लेकिन एक खूबसूरत कैच किया यहाँ पे परवीन गेल ने, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीता है टीम बिलरियागंज और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई। बिलरियागंज सुपर किंग इस मुकाबले को जीता है। 4 मुकाबला खेला, 2 जीता 2 हारा है। अभी तो ये कुछ कंफर्म नहीं है कि कौन क्वालिफाई करेगा, क्योंकि मुश्किल है। और अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि रेहान संजरी सुपरस्टार टीम अपनी फील्ड पॉइंट को दोस्त तरतीब दे, वक्त कम है और आप देख रहे हैं